All right, welcome back. The kitchen here smells amazing. Appa, let's dish the kaleji out. It's ready, see? Yes. The water is gone and it is cooked. I'll just show it to you, see this. Now I'm going to add salt in it. Not too much, 1/4 teaspoon. All right. And you're going to add lemon juice. Okay. That is all. Now this will get the taste. Nice. See, and now I'm going to dish it out. And then I'll do the decoration. You have a guest, so you can introduce All right, your yes. guest. All right. Since Appa is dishing out some nice and simply tasted kaleji, let's head over to our guest. We have Iman today with us, and she has an interesting, amazing story of her travels. Let's see what that is. All right. Iman, Assalamu alaikum. How are you? Eid Mubarak. Walaikum Assalam. I'm fine. How are you? Eid Mubarak. Alhamdulillah. Thank you so much. So Iman, I see your dress is very nice for Eid today. Thank you so much. Yours too. Thank you. All right. So what happens normally on Eid at your house? Do you help your mom in the kitchen? Yes, I do. But most of the time, I'm outside playing with my friends All right. and watching Qurbani. As there are many goats and cows Yeah. in our, society and all. So I really enjoy Qurbani, Eid basically, because we gather together and we do Qurbani. We sacrifice whatever we have got, like goats and cows. That's and then nice. we eat together, we pray together. All right. So I heard this amazing story, your travel story. So I would like to hear it from you again. Yes. Okay, so I went to perform Hajj in 2017 with my parents. Mashallah, mashallah. That's And great. it was a very beneficial experience for me because I got to experience every single moment I've heard so far. I've studied in Islamiyat and all. So it was something that changed my life totally. Really? And I'm so Yes. sorry. How old are you again? I'm 15. Really? Oh, mashallah. That's great actually. Wow, Yeah. that's something, to So admire. now I have become patient because Mashallah. before I used to be like, Mama, I have to do this, Mama, I have to do Yeah. this. And that's why now it seems like I'm a bit patient and I have grown up a bit. Mashallah. And that experience made me actually become closer to my God. And all, I have paid more attention to my prayers now and my duas and all. Mashallah. So yeah, it That's was a great. really fun That's great. experience. All right, Appa. जी, it is ready. देखिए ये इसलिए मैंने लगाए these sticks because Yes. you are not going to fill your stomach with this. आपने सिर्फ रोज़ा खोलना है. As said, so you just pick up one, Bite you have it, and then you are free to have Nice. anything. I also And- like कि clean रहेगा इससे. हाँ, Yes. हाथ आपके गंदे नहीं होंगे. नहीं देखो आप बार बार रोजे का जिक्र कर रही है ना. रोज़े का मतलब कि जो हमें बताया गया कि बकरा ईद पे आप जब नमाज पढ़ के आते हैं, कुर्बानी के बाद आप खाते फर्स्ट हैं, थिंग ये बिल्कुल। खाते हैं, वो रोज़ा खोलना है. हाँ सही. मैं वो- उसकी वजाहत इसलिए चाह रही थी कि सुनने वालों को कोई प्रॉब्लम Yes, ना हो. it's not the roza जो हम करते हैं the whole day. This roza means when you come back from your prayer, the कुर्बानी you have done अल्लाह के नाम की, उससे ही आप रोज़ा खोल के then you can eat anything and you're not fasting. Yes, thank you. और ये थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम्स वगैरह लगा दिए हैं. Have your candles on because the candles will absorb all the smell. And the people who come to your house, like people have a brunch at their house, like at my house, because my husband is the eldest, so all the brothers and everybody they come for breakfast. So then everything should be ready from before. बस इससे आपने खाया and then you're free to eat anything. And you can have some flowers in the whole house. You can have just rose petals put in bowls of water because of the smell of the meat. People should feel comfortable, not uncomfortable. And then you can just serve it. This can go to your इससे पूरा table. माहौल जो है बड़ा Perfect. खुशगवार सा हो जाता है. Yes. एक तो उसकी अच्छी खुशबू और फिर उसका कलर जो होता है. बिल्कुल. And please, when you do the qurbani at your house, please have the space clean क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है. Or never leave don't put the things out on the road because cleanliness, if you do this, then whatever sawab you have gained, it just goes down the drain. So these are little things, make people happy, make yourself happy, make your family happy, cook for them, sit with them, enjoy food, and when you have guests sitting over there,
then this will go on the table ताकि they will let me know. I should get the feedback how it was. This was the instant कलेजी. फिर आप मसाले वाली बनाए. I love this one. मुझे वो मसाले वाली I am not that. And then I you think there's something about black pepper and salt. yes, It's a classic taste, right? वो अच्छा टाइम सेविंग रेसिपी. Yes. Very, Easy very. and delicious at the बस same जैसी time. हुई आपने उसको अच्छी तरह खुद वॉश किया nicely and वॉश करने का cut them into small pieces. जितने small होंगे, the smaller the pieces, the easier it's to cook and Even easier to cooking eat. time, yes. And even So eat it to doesn't eat. tough. हाँ, जो लोग नहीं खाते इतना से तो खा सकते. थोड़ा सा Those people who are very in touch with the diet and protein and all that, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, कलेजी is the element who engage your body to hold the protein. जो आप जो भी प्रोटीन डाइट कर रहे होते हैं वो बॉडी को होल्ड करने में बहुत टाइम लगता है. Yes. तो वंस इन अ वीक इफ़ यू हैव कलेजी लाइक आप खुद बनाएं, बच्चों को खिलाएं, तो वो प्रोटीन को ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प आउट करता है. वो जो आपकी बॉडी को करना होता है वो ये आधा काम कर लेता है. दिस इज द बेस्ट थिंग. अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड, ये सुबह ही है कि आप सुबह खा रहे होते हैं, एंड दिस इज मेक्स ब्लड इन योर बॉडी एंड दिस विल गिव ग्लो टू योर स्किन रादर देन द क्रीम यू आर यूजिंग. ये सबसे बेस्ट चीज. मास गेनिंग के लिए तो इट्स अ वेरी The best ब्लेसिंग. thing. हाँ, ब्लेसिंग है. फुल ऑफ आयरन है इस वजह से. हाँ, इट्स फुल ऑफ आयरन. लोगों को कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आपको कि दिया है तो आप इसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे और आप खाएंगे. और जब भी मैं बनाती हूँ एट होम, इसमें से कुछ नहीं बचता. आपके हाथ में तो हाँ, वैसे ही नहीं, exactly. देखिए व्हेन यू स्टार्ट द फूड, आपने वहाँ पे भी अल्लाह अकबर करा है, फिर बिस्मिल्लाह करके आप पकाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के खाने में वैसे ही द टेस्ट कम्स इन द फूड. एंड व्हेन यू मेक इट हैप्पीली फॉर द पीपल, डोंट मेक अ फेस एंड कुक, बिकॉज इफ यू मेक अ फेस and cook, the food will not be Taste the delicious. same, Yes. yes. Very true. This Very is true, Very actually, true, yes. and I'm 100% agree with you. जो आप फील कर रहे होते हैं वो ही जाता है. एग्जैक्टली. Translate हो जाता है. बिल्कुल. हाँ, दैट्स टर्न आउट के वो जो भी आप फील करते हैं, तो जो भी किचन में भी इवन इट्स अ ब्लेसिंग. लाइक आपने जैसे कहा, वी हैव अ कल्चर लाइक दैट के सब आ रहे हैं एंड हमारे पास एक मौका है कि हम उस सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करें टुगेदर. बिल्कुल. तो वो कोविड के दिनों में तो वी ऑल आर डिस्टर्ब. लाइक हम अपनी ईदें किस तरह मना रहे थे, तो ये वाकई इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस Finally, कि हम वी we're आर back टुगेदर to- टू सेलिब्रेट दिस डेज इन आवर हाउस. तो हम कल्चर भी इतना अच्छा है और हमें ईद जैसी चीज़ मिली हुई है. मज़हब तो क्या ही बात है. और सब. So everybody who's waiting should have a smiling face. Because अभी वो बल्कि ईमान ने बड़ी अच्छी बात की और मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी कि ईमान ने कहा कि हम जब छोटी एज में हज के लिए जाते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं तो हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं और हम अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. इसका मतलब ये कि फिर उसके बाद जब हम कोई इबादत करते हैं, चाहे हम नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे हम कुरान पाक पढ़ रहे हों, तो हम उसको एंजॉय करते हैं और इस फीलिंग के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है. बेशक. वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम ये अपने जहन में रखो कि तुम रब को देख रहे हो और अगर तुम अपने रब को नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है. तो ये जो फीलिंग है ना कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं और हमें ये फीलिंग होती है कि हम अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हमारा जो मरकज़ है खाना काबा वो हमारी निगाहों में होता है. यानी हमारे जहन में होता है कि काबा हमारे सामने है, हमारा किबला, और हम उस किबले की तरफ मुंह करके जो है अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं. इसी तरह जब इन्होंने बताया अपना हज का एक्सपीरियंस, तो मैं समझती हूँ कि वो पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास, क्योंकि हज तो बहुत एक्सपेंसिव एक इबादत है, तो वो पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में वहाँ लेके जाएं और न सिर्फ ये कि हज और उम्रा करवाएं, मस्जिद नबी में लेके जाएं, वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दें और बताएं कि वो जिनके बारे में हम सुबह शाम आपसे गुफ्तगू करते हैं, जिनके नाम पे हम दुरूद पढ़ते हैं, जिनको हम दुरूद सलाम भेजते हैं, यही वो हस्ती हैं जिनसे आपने मोहब्बतें लेनी है, यही वो हस्ती हैं जिनकी इताअत आपने करनी है और अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाना है. तो आई थिंक बड़ा अच्छा मैसेज दिया ईमान आपने, और अल्लाह ताला तमाम बच्चों को, बड़ों को ये तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ भी अता फरमाए. और इनके लिए तो और आसानी है. यू वर यंग व्हेन यू वर डूइंग द तवाफ. आई थिंक यू वुड बी फास्टर देन द एल्डर्स. Yes, I was. You मतलब you want to run around. Exactly. है ना, ताकि वो तवाफ में मज़ा आता है, ताकि हम लोग तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, मगर बच्चों को आई थिंक दे वांट टू रन एंड दे वांट. जब आप वहाँ पे भी जाते हैं तवाफ के बाद, जब आप ये जो सफ़ा और मरवा पे, सफ़ा मरवा पे, यस,
तो वहाँ पे भी बच्चे when I was there, they are just running so far, वो enjoy करते हैं. बल्कि वहाँ पे जो उनके लोकल्स हैं वो जब वीकेंड्स पे आते हैं और तवाफ़ करते हैं तो उनके लिए तो वो कहते हैं पिकनिक है हमारी. पिकनिक है. वो कहते हैं कि हम जैसे अपना पूरा वीकेंड यहाँ पे गुजारते हैं, हम इबादत भी करते हैं, और बच्चों को वहाँ पे जब बिठाते हैं और जब वो बच्चे तमाम वो माहौल देख रहे होते हैं, उनके लिए लर्निंग होती है. तो आई थिंक ये वो टाइम होता है बच्चों का लर्निंग का कि वो बहुत जल्दी अल्लाह और रसूल के करीब आ जाते हैं. और जब आप अल्लाह के करीब आ जाते हैं तो आपका पूरा जो ज़िंदगी का एक निज़ाम है ना वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि हर लम्हे आपके जहन में फिर ये होता है कि मैंने वो काम नहीं करना जो मेरे रब को नहीं पसंद, क्योंकि मेरा रब तो मुझे देख रहा है. और ये जो एक फीलिंग है ना जिसको हम ईमान कहते हैं, जो इनका नाम भी है कि हमने रब को नहीं देखा लेकिन फिर भी हमने रब को देख लिया है और पहचान लिया है उसको. और वहाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा जो लगा, जब ईद होती है वहाँ रात से तकबीरें और सुबह जो फजर से जो तकबीर अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ. बिल्कुल. और मैं बल्कि इसके बारे में बताऊँ कि तकबीर तशरीक जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि रसूल पाक ने हमें बताया कि ये 9 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक आप 9 के से लेकर 13 तक जो भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना जो है वो वाजिब है. और वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. ये आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ना है, चाहे आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप अकेले पढ़ रहे हो, आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप जो भी हैं, आपने ये पढ़ना है इसको एक मरतबा फ़र्ज़ घर में लगा लें. और मर्द जो है थोड़ी ऊंची आवाज़ से पढ़ सकते हैं, लेकिन औरतों ने इसको धीमे पढ़ना है. तो ये वो अल्लाह ताला इसकी मोहब्बत का इजहार है कि हम जो है रब तेरे पास हैं. और जैसे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हज नहीं कर पाते लेकिन वो अपने आप को मसरूफ़ करते हैं इबादत में, और ये सोचते हुए कि वहाँ पर हाजी जो कुछ कर रहे हैं तो हम गोया उनके साथ उन इबादतों में शरीक हैं. और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि ये जो पहला अशरा है मैं इसमें ना अक्सर रोज़े रखता हूँ और मैं अपनी इबादत को बढ़ा देता हूँ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों बढ़ा देते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि मुझे ये फीलिंग होती है कि जिस तरह हाजी जो हैं अल्लाह के घर में मौजूद हैं और तवाफ़ कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं और जो भी उनको बताया गया तरीक़ेकार हज का उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ये फ़ील होता है कि मैं उनके साथ हूँ और जिस वक्त वो दुआएं मांगेंगे और मैं जो यहाँ घर बैठ के भी दुआ मांग रहा हूँ तो गोया मुझे भी वो सब कुछ मिल जाएगा जो अल्लाह ताला उनको वहाँ पर देगा. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी यही नीयत है तो तुम यकीन करो कि जो सवाब उनको वहाँ बैठ के मिल रहा है वो तुम्हें घर बैठ के मिलेगा. तो गोया जो हम यहाँ पहले अशरे की जो बात कर रहे होते हैं उसमें हमें इसलिए कहा गया कि इस अशरे की रात की इबादत जो है वो लैलतुल कदर की इबादतों की तरह है, और इस अशरे में एक रोज़ा रखना जो है वो 1 साल के रोज़ों के बराबर है. लेकिन 9 ज़िलहज का रोज़ा जो है उसका सवाब 2 साल के बराबर है और उसकी रात की इबादत भी 2 साल की इबादत के बराबर है. तो इसलिए हमें इस अशरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारना चाहिए. और 13 ज़िलहज तक स्पेशली, क्योंकि 9 से 13 तक हज का टाइम है, ये वो 5 दिन हैं जिसमें हज के तमाम जो अरकान हैं वो अदा किए जाते हैं. और हाजी जो हैं वो मुख्तलिफ अरकान जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बताया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, उसको फॉलो करते हैं. लेकिन वो लोग जो वहाँ नहीं जा सकते और घर बैठ के रोज़ा रख रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसको बहुत उम्दगी से अदा These are the things which you should know and you should share with your children. बिल्कुल. And this is the most important. खाना तो चलता है मगर these are the things but we should know, we should tell our children ताकि वो भी समझ के जब काम करेंगे तो उसका सवाल I think it's break time now. Yes. Let's head over to the break, and if in case you missed anything, you can go to YouTube, Iqra TV official's page to catch up on anything that you missed. Instant Kaleji. Ingredients: oil for frying, kaleji 500 grams, crushed black pepper 1 tablespoon, nigella seeds 1 pinch, salt 1/4 teaspoon, lemon juice ½ cup.